Okay, so everyone mark your presentee. Mark your presentee in the chat box. We will start with standard 5th. Okay, we were doing your lesson number 8, that is a trick to mosquitoes, right? Okay, so we have learned about mosquitoes and anemia. So let's continue. Is my screen visible to you? Yes, is it clearly visible to you? Everyone, please let me know. Okay. Okay, so let's start. See. Now, again, then their conversation has started. So first we will see what they are conversing about. So they have first seen a poster regarding something. Let's see. Baby mosquitoes, just Kiran. There is a poster on malaria just outside our class, and everyone goes out to look. So, what the poster has, what is written on the poster? Are you inviting mosquitoes? Be aware. They spread malaria, dengue, chikungunya. So the poster is saying कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो yes you are inviting mosquitoes and mosquitoes मलेरिया डेंगू एंड चिकनगुनिया जैसे बीमारियां स्प्रेड करते हैं. डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस फिल अप द पिट्स. आपके घर के आजू बाजू में पानी को जमा होने न दे. अगर गड्ढे हुए होंगे तो उन्हें फिल कर दीजिए. कीप द वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन. आपके वाटर पॉट कूलर एंड टैंक्स को हमेशा क्लीन रखिए. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. वीक में एक बार उनको ड्राई रखिए. यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ. सोते वक्त खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए. स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस. अगर कहीं भी पानी जमा हुआ दिख रहा है तो वहां पे केरोसिन स्प्रे कीजिए सो दैट मॉस्किटोज विल डाई अप. ओके, सो रजत इज सेइंग कि द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वे. व्हाट आर दोस? Nancy. They are baby mosquitoes. So larvae are baby mosquito. But they don't look like mosquitoes at all. लेकिन वो जैसे see a dog's baby is puppy. It look like dog only ना? Yes. But ये जो मॉस्किटोज के बेबीज होते हैं वो मॉस्किटोज की तरह नहीं दिखते हैं. तो क्या बता सकते हैं आप किस तरह दिखते होंगे वो? Any idea? Do you have any idea कि how mosquitoes baby looks? Yes, anyone? No one? You don't have any idea about this? Okay, fine. Let's see how they look. Where did you see them, Nancy? There was an old pot lying behind our house. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some tiny thread like grey things swimming. See, these. Oops. These are mosquitoes larvae. एक कीड़े की तरह होता है मॉस्किटोज के जो बेबीज होते हैं वो. ओके, सो नैन्सी इज लाइक के मेरे घर के पीछे एक पॉट था. सो
उस पॉट में कुछ पानी जमा हुआ था, तो वहां पे उसने छोटे छोटे ग्रे कलर के कुछ थिंग्स देखे that was swimming in that water. I was surprised when mummy told me that this had come out of the eggs which mosquitoes lays in water. तो ये कहाँ से आए हैं जो अंडे मॉस्किटोज ने पानी में दिए थे, उसमें से ये सारे आए हुए हैं. They are called larvae. It also heard some. I also heard something about this on the radio. Rajat, what did you do? Nancy. Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect. So रजत ने पूछा कि तो तुमने क्या किया? नैन्सी ने कहा कि पापा ने वो पानी फेंक दिया और इमीडिएटली उस पॉट को ड्राई कर दिया एंड उसको अपसाइड डाउन भी रखा, उल्टा करके रखा सो दैट उसमें पानी जमा ना हो. Just Kiran. Shazia auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problem, Rajat. But flies don't bite, then how do they spread diseases? So, see, uh, one student is saying कि उसे बताया गया कि फ्लाइज से भी डिजीजेस स्प्रेड होते हैं, बट ही से समवन इज सेइंग के लेकिन मक्खियां तो काटती नहीं है, तो उनसे किस तरह से डिजीज स्प्रेड हो सकता है? हाउ दे कैन स्प्रेड डिजीजेस? कैन एनीवन टेल मी? टेल मी, दिस वन इज सो इजी. अगर मक्खियां हमें काटती नहीं फिर भी उनकी वजह से हमें कुछ डिजीजेस हो सकते हैं, सो हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन स्प्रेडिंग डिजीजेस? श्रेयांशी, क्या बता सकते हो? ओके, Shreyanshi, I am asking के mosquitoes spread the disease by biting, right? हमें वो बाइट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, राइट? बट व्हाट अबाउट द फ्लाइज? फ्लाइज डोंट बाइट ना, सो हाउ कैन दे स्प्रेड डिजीजेस? दीपिका, विल यू? फ्लाइज हर गंदी चीज पे बैठती है और वो हमेशा हमारे घर में पाई जाती है. अगर हम हमारे खाने को खुला रखें तो वो उस पे आके बैठ जाती है एंड देन वी गॉट द डिजीजेस. ओके, हम हमें वो इन्फेक्टेड जर्म्स जो भी उस फ्लाइज में लगे हुए होते हैं वो हमारे खाने में चले जाते हैं एंड यस, हम कभी भी खा जाते हैं वो जर्म्स वाला फूड एंड we get diarrhea, vomiting, stomachache like diseases. Find out and tell. Have you seen any poster like this put up anywhere? क्या आपने कभी देखा है ऐसा कोई पोस्टर मलेरिया के इंफॉर्मेशन देता हुआ या किसी भी डिजीज की इंफॉर्मेशन देता हुआ पोस्टर? हैव यू सीन एवर? बताइए, प्लीज डू रिप्लाई. Okay, yes or no, you have to reply in the chat box. If your answer is no, then also you have to reply in the chat box. Who do you think puts up such posters or gives ads in the newspaper? So what do you think? कौन देता होगा ये ads newspaper में? अवर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के जो भी मेडिकल मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं वो हर बार कोई भी अगर जैसे कोरोना का था तो हर बार हमें पोस्टर्स देखने मिलते थे कहीं पे भी क्या करना है क्या नहीं करना है. तो प्रिकॉशनरी जो भी चीजें होती है वो करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट का
यस एडिटर बेटा, लेकिन वो किसके हिसाब कौन प्रोवाइड करता है? अवर गवर्नमेंट्स मेडिकल डिपार्टमेंट। ओके ना। मॉस्किटो चेक। Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around and check one area in school and around it. अगर आपको क्या करना है, मॉस्किटोज चेक करना है स्कूल में, स्कूल के अराउंड। तो पॉट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस लाइक स्कूल ग्राउंड में कोई भी ओपन स्पेस हो, गटर, एनी अदर प्लेस, तो वहां पे आपको जाके पानी कितने दिन जमा हुआ था, किसने ये प्लेसेस क्लीन रखने चाहिए। ओके ये सारा चीजें देखनी है। एंड अगर उसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो दैट आल्सो यू हैव टू राइट। ओके दिस इज आल्सो अ सर्वे रिपोर्ट। ओके सो अ साइंटिस्ट peeps into a mosquito's stomach. See, मॉस्किटो के स्टमक में जब साइंटिस्ट ने देखा, so what he has observed. The interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own word. जब मॉस्किटो से मलेरिया होता है ये पता चला, तब किस तरह उसका इन्वेंशन हुआ था, that we are going to see now. My father was a general in Indian Army. I studied to become a doctor. But what I really like was reading stories, then writing poetry, music, and drama. In my free time, I enjoy doing all this. That guy is saying कि मेरे पापा इंडियन आर्मी में जनरल थे एंड मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा. In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. तो ये जब की बात है, तब बहुत सारे लोग जिसको आज हम मलेरिया बोलते हैं उस डिजीज से मर रहे थे. The disease was found in an area where there was lot of rain or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. तो यहाँ ये जो मलेरिया था, वो जहाँ पे ज्यादा बारिश होती थी या फिर जो स्वैम्पी एरियाज रहते थे वहां पे पाए जाते थे वो पेशेंट. तो लोगों को लगा कि दिस इज ड्यू टू द specific gas, a poisonous gas that is coming in from that area. Okay, now what he has found out, they gave it the name malaria, which means bad air. तो इसको मलेरिया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मलेरिया का मीनिंग है बैड एयर. ओके One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under microscope, but he could not understand how these had got into the patient blood. तो एक डॉक्टर ने पेशेंट के ब्लड में उस टाइप के कुछ जर्म्स देखे थे, बट उसे पता नहीं चला कि ये इसमें क्या कर रहे. My professor had some ideas about this. I think that this may be carried by some kind of mosquito. As a student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottle and chase mosquitoes after mosquitoes. Then we would put mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. Mosquitoes would have a feast biting this patient. The patient were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. See,
तो यहाँ पे क्या किया गया, उन्होंने बहुत सारे मॉस्किटोज को चेस किया चेक करने के लिए, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। देन आफ्टर दैट दे वांटेड टू डू एक्सपेरिमेंट। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन था मलेरिया का, उसे पे करके उन्होंने मॉस्किटो को बाइट करने दिया। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन Sikandarabad. How we used to cut open the mosquito stomach and peep into it. I would spend hours and hours bent over the microscope. By night, my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. I used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I always fell ill with malaria. तो वो अभी क्या करने लगे, ये सारे जो भी मॉस्किटोज थे उनके स्टमक में देखते रहते हर बार कि क्या है। एंड फॉर दैट, मॉस्किटोज के स्टमक में देखना क्या हमारे नेकेड आई से पॉसिबल है? नो, उन्हें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता था हर बार। वो माइक्रोस्कोप से बेंट हुए रहते थे हमेशा। शाम तक तो उनकी जो भी नेक थी वो स्टीम हो जाती थी। सो दे वेर लाइक टायर्ड ऑफ इट। और एक बार तो उनको खुद को वो खुद से मलेरिया से इन्फेक्ट भी हो चुके थे। I spent months like this with the microscope and then but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. They were brownish with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquito, I saw something black there. I looked closer, I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patient. At last we had the proof mosquitoes did spread malaria. तो एक बार उन्होंने एक ऐसा मॉस्किटो को पकड़ा जो ब्राउनिश था और उसके विंग्स पे स्पॉट थे। तो देन जब उन्होंने फीमेल मॉस्किटो के पेट में चेक किया तो उनको सम ब्लैक कलर के जर्म्स दिखे, दैट टाइनी जर्म्स जो उन्होंने पहले मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में ऑब्जर्व किए थे। सो आफ्टर दैट दे हैव प्रूव दैट दे हैड मलेरिया। Mosquitoes only spread malaria. In December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine. In 1905, even as he lay dying, Ross' last words were, I will find something new. Okay, so what we have learned in this? What can you do so that mosquitoes do not breed in your house, school and neighborhood? And how can you find out if someone has malaria? तो बताइए मुझे, आप मॉस्किटो से प्रिवेंशन के लिए क्या करोगे इन योर हाउस एंड इन स्कूल एरियाज? हिंदी में भी बता सकते हो आप। ओके, सब साफ रखना, ड्राई अप ऑल द थिंग्स, किसी भी जगह पानी जमा ना होने देना, राइट? Yes. Okay. So this was for fifth standard. Our lesson is done. Have you understood? Standard fifth. Have you understood? Okay. Sixth standard. How many are there from standard six? Sixth standard. Uh, Write your names in chat box. No one has mentioned the standard. चलिए चैट बॉक्स में नाम लिखिए जो भी प्रेजेंट है। Only Arnav is there. Only Arnav is there from standard 6. Right? Sorry, Aryan. Only Aryan. And seventh standard,
Two are there from 7th standard, right? Okay. Okay, we have started your lesson number 9, habitat and adaptation. Okay. So we have learned about uh, the habitats. Okay, so camels and all these live in a terrestrial habitat. That terrestrial habitat contain forest, grassland, desert, coastal and mountain region. And on other hand, fishes and the aquarium aquatic animals lives in aquatic habitat. Okay. Lakes, river, and ocean are some example of aquatic habitat. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal, and mountain region located in different parts of the world. The organism, both plant and animal living in a habitat are its biotic component. तो जो भी living होते हैं, animal हो या plant हो, वो उस habitat के biotic component कहलाते हैं. And the non-living things such as rock, soil, air and water in habitat constitute its abiotic component. तो जो भी non-living है, rock, soil, air, yes, उस habitat में वो abiotic things कहलाते हैं. So what do you think, sunlight and heat are abiotic or biotic compounds, biotic component of an habitat? बताइए. सनलाइट एंड एयर क्या होंगे, बायोटिक या अबायोटिक? आर्यन. यस आर्यन बोलो. सनलाइट एंड एयर लिविंग है या नॉन लिविंग है, बोलो. यस, नॉन लिविंग. तो वो होंगे अबायोटिक. Seaweed sprouts from mung and chana seeds. That when the seeds turn into sprout, it is said to have germinated. This is the new beginning of life of new plant. Collect some dry mung seed, keep 20 to 30 seeds aside and soak the rest in water for a day. Divide the soaked seed into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3 to 4 days. Do not disturb the dry seed and those submerged in water. Keep one that part of soaked seed in a sunny room and another in completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. Rinse them and replace the water every day. What do you notice after a few days? Do the seeds in all five conditions germinate uniformly? Do you found shower or no germination in any, slower or no germination in any these? See, हमने लेसन में पढ़ा था कि हमने स्प्राउट्स, मूंग एंड चना, चना स्पेसिफिकली वी हैव लर्न स्प्राउट्स देखे थे हमने, यस, लेसन नंबर 5 में. तो बताइए मुझे, अगर हम मूंग को ड्राई मूंग लेंगे, कुछ को पानी में पूरी तरह सबमर्ज रखेंगे, एक पार्ट को एक डार्क रूम में रख देंगे एंड एक पार्ट को पानी में रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और उसका पानी चेंज करते रहेंगे. आफ्टर 3 to 4 days क्या सारे मूंग जो है वो जर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, बताइए. नो, ऑल विल नॉट जर्मिनेट. Do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for growth of plant? तो यहाँ पे
कुछ को पानी नहीं मिला तो कुछ को एक एक जो भी मूंग वाला कंटेनर हमने बंद करके रखा था कबर्ड में, वहां पे उसको उसको हवा और लाइट नहीं मिली तो वो जर्मिनेट नहीं हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एयर वाटर एंड लाइट हीट, ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है, वो भी किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climate, isn't it? How do they manage to survive? हमने देखा ना कि बहुत कोल्ड मतलब एकदम कोल्ड रीजन में हम पेंगुइन, पोलर बेयर सर के जैसे ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। एंड एकदम जो हॉट रीजन्स होते हैं वहां पे हम कैमल, देन कैक्टस जैसे लिविंग थिंग्स देख सकते हैं। सो हाउ दे सर्वाइव? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. तो किसी भी एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से किसी भी क्लाइमेट से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एडजस्ट कर लेता है, एंड वो थिंग है एडाप्टेशन। Adaptation does not take place in short time because the abiotic factor of a region also change very slowly. तो आप पोलर रीजन में गए और वहां जाके अडाप्ट होने लगे, ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा वक्त लगता है अडाप्ट होने के लिए किसी भी चीज में, बिकॉज जो अबायोटिक फैक्टर है वो भी रीजन के अनुसार बहुत धीरे धीरे बदलते रहते हैं। Those organisms which cannot adapt to these changes die and only adapted ones survive. और जो अडेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, क्लाइमेट को, वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और जो अडेप्ट कर पाते हैं वो जीते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। तो ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर को डिफरेंटली रिस्पॉन्स करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। इसी वजह से किसी भी एक हैबिटेट में हमें अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ओके, let us look at some habitat, understood the abiotic factor and the adaptation of animal in this habitat. तो आपको adaptation समझ में आया है आर्यन? Have you understood about adaptation? किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसके अबायोटिक फैक्टर के अनुसार खुद में चेंजेस करवाना, ये अडेप्टेशन होता है। सो हम एक एक अडेप्टेशन सीखेंगे। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। पहले तो हम कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है डेजर्ट। We discussed the abiotic factor of desert and the adaptation in camel. What about other animal and plants that are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? हमने कैमल के बारे में पढ़ा ना कि वो वाटर स्टोर कर सकता है। यस, ऑल द थिंग्स वी हैव लर्न। सो सारे एनिमल्स इसी तरह के अडेप्टेशन दिखाते हैं। एनिमल्स या फिर कोई भी प्लांट, जो भी लिविंग थिंग है डेजर्ट रीजन में। लेट्स सी, there are desert animal like rats and snakes which do not have long leg that a camel has. हमने देखा ना कि पूरी तरह वो जो सैंड होती है उसमें फंस न जाए, इसलिए कैमल के पैर, बॉडी को हीट, सैंड की हीट से बचाने के लिए कैमल के पैर बहुत लंबे होते हैं, हमने पढ़ा। लेकिन क्या स्नेक एंड रैट्स के पैर लंबे होते? नो। To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in sand. तो वो खुद की रक्षा कैसे करते हैं इतनी गर्म सैंड से? तो वो क्या करते, दिन भर बाहर निकलते ही नहीं, वो एकदम अंदर किसी होल में दबे रहते हैं, सो दैट वो हीट से बच सके। और इन नाइट दे कम आउट। ओके, व्हेन इट इज कूलर। डेजर्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे दिन में जितनी गर्मी होती है उतनी ही ठंड रात को रहती है। तो वो क्या करते हैं, रात में बाहर आ जाते हैं। 9.5 shows some typical plant that grow in a desert. How are these adapted to desert? तो यहाँ पे
9.5 में कैक्टस जैसे कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं। वो अ, क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट कहलाते हैं, जो डेजर्ट में अडाप्टेशन की वजह से रह पाते हैं। So one activity is given: bring a potted cactus and leafy plant to the classroom. Tie polythene bag to some part of two plant, as uh, as was done for activity 4 in chapter 7, where we studied transpiration in plant. Leave the potted plant in sun and observe after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in amount of water collected in two polyethylene bag? Desert plant lose वेरी लेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अगर आपने एक कैक्टस का प्लांट और एक कोई भी दूसरा प्लांट लाया और उनको उनके एक एक लीफ को पॉलिथीन बैग से टाई किया, तो आफ्टर सम आवर्स आप देखोगे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में जो अदर लीफ होता है वो ज्यादा पानी छोड़ता है, लेकिन जो कैक्टस का प्लांट था उसने बहुत कम पानी छोड़ा। इसका मतलब है कि डेजर्ट प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत कम पानी छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पे रहने के लिए पानी की जरूरत है, एंड दे आर स्टोरिंग द वाटर इनसाइड देम। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर absent, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन। तो डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स होते हैं वो आइदर absent ही होते हैं, नहीं ही होते, या फिर बहुत छोटे होते हैं, या फिर स्पाइन्स होते हैं उनमें। This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. क्यों ये अडाप्टेशन होता है उन लोगों में, उन प्लांट्स में? सो दैट ट्रांसपिरेशन के थ्रू होने वाला वाटर लॉस वहां पे ना हो। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इनफैक्ट इट्स स्टेम। जिसको हम कैक्टस का लीफ बोलते, वो लीफ नहीं होता है, इट इज इट्स स्टेम। उसका स्टेम होता है। Photosynthesis in this plant is usually carried out by stem. तो इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, खुद की खाना बनाने की उनकी जो क्रिया होती है, वो स्टेम में कैरी आउट होती है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। उनपे एक थिक वैक्सी लेयर होता है विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज ऑफ कैक्टाई, सो दैट कैक्टाई के टिश्यू में जो वाटर है वो स्टोर किया जाए। Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. और बहुत सारे डेजर्ट के प्लांट्स के रूट होते हैं, वो मिट्टी में बहुत अंदर गए हुए होते हैं, सो दैट जो भी ग्राउंड वाटर है वो उसको एब्सॉर्ब कर सके। ओके, अंडरस्टूड दिस वन? यस, डेजर्ट हैबिटेट समझ में आया है? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ माउंटेन रीजन। These habitats are normally very cold and windy. माउंटेन रीजन में ठंड होती है एंड हमेशा हवाएं चलती रहती है जोर जोर से। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। कुछ जगह तो विंटर में स्नोफॉल भी होता है, बर्फ गिरती है। देर इज अ लार्ज वैरायटी इन प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। और माउंटेन रीजन में भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? आपने कभी इस तरह पाइन ओक ट्रीज इस तरह रहते हैं? ओके, आपका क्रिसमस ट्री भी इसी तरह रहता है। इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? तो आपने अगर माउंटेन रीजन विजिट किया है, या फिर आप माउंटेन रीजन में अगर रहते हो, या फिर कहीं पे भी ऑन द इंटरनेट, या भी कहीं पे भी आपने ये ट्रीज देखे हैं, तो या ये और किसी रीजन में क्या दिखाई पड़ते हैं आपको? नेचुरली ग्रो हो पाते हैं ये ट्रीज और किसी रीजन में? नो, सिर्फ माउंटेन रीजन में वी कैन सी दिस। हाउ आर these trees adapted to the condition prevailing in their habitat? तो उस हैबिटेट में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उनको झेल के ये सारे प्लांट्स कैसे सरवाइव कर पाते हैं?
These trees are normally cone shaped and have sloping branches. आपने देखा होगा कि इनका कोन शेप रहता है. आपने क्रिसमस ट्री तो देखा होगा. यस, कोन शेप रहता है और उनके ब्रांचेस स्लोपिंग रहते हैं ताकि उन पे कोई भी चीज ना रह पाए, वो नीचे आ जाए. The leaves of some of these trees are needle like. निडल की तरह लीव्स होते. दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, सो दैट जो रेन वाटर या फिर स्नो है वो उनके पत्तों पे या पेड़ों पे जमा ना हो, नीचे चला जाए. देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम these that are also present on mountain. They may have different kind of adaptation to survive on the mountain. तो सारी पेड़ इसी तरह के नहीं होते, कुछ अलग तरह के होते हैं. तो शायद उनमें कुछ अलग अडेप्टेशन हो माउंटेन में सरवाइव करने के लिए, राइट. एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेनियस रीजन are also adapted to the conditions there. They have thick skin or fur to protect them from cold. तो माउंटेनियस रीजन में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो भी वहाँ की कंडीशंस से अडेप्टेड रहते हैं. तो क्या होते हैं उनमें अडेप्शन, उनकी जो स्किन है वो थिक होती है और उनके स्किन पे फर रहता है सो दैट ठंडी से उनकी रक्षा हो सके. फॉर एग्जाम्पल याक, अगर आपने याक देखा होगा तो याक के बहुत लंबे बाल रहते हैं सो दैट वो, और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, वो थिक रहते हैं सो दैट ठंड से वो उसकी रक्षा कर सके. स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी. ये स्नो लेपर्ड है, उसके बॉडी पे भी थिक फर रहता है सो दैट वो कोल्ड में वो सरवाइव कर सके. ये है माउंटेन गोट. ओके, माउंटेन गोट भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा थिक फर है, बहुत ज्यादा बाल है उनके बॉडी पे. Including feet and toes, this protect its feet from cold when it walks on the snow. तो वो जो बाल फर रहता है वो फीट एंड टोज पे भी रहता है सो दैट जब वो बर्फ पे चले तो बॉडी का प्रोटेक्शन हो सके. द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन. माउंटेन के जो रॉकी स्लोप है वो उनमें भागने के लिए ये जो माउंटेन गोट है उसके हूफ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं. As we go up in the mountainous region, the surrounding change and we see different kind of adaptation at different height. So mountain का अलग अलग लेवल पे different different height रहता है, तो accordingly adaptations भी animal and plants के अलग अलग रहते हैं. Okay, got it? Got till here? We will continue the next in the next lecture. Okay, 7th standard. Physical and chemical changes lesson we have started. Okay, so we have seen that one or more new substance are produced in chemical change. हमने देखा था कि chemical change में एक नया substance produce होता है, physical change में do not produce do not form any new substance. Okay, so in addition to new product, the following may accompany a chemical change. तो न्यू प्रोडक्ट तो तैयार होता ही है लेकिन उसके साथ कुछ अलग चीजें भी केमिकल चेंजेस में होती है. व्हाट आर दोस? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट में बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब. जब केमिकल चेंज होता है तो रिएक्शन में हीट, लाइट और कुछ रेडिएशन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. साउंड में भी आवाज प्रोड्यूस हो सकती है, रिएक्शन में से आवाज आ सकती है. चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ. जो भी सब्सटेंस हमने लिया है
जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कुछ अलग ही स्मेल का हो सकता है, या फिर स्मेल कैन बी गिवन ऑफ। कलर चेंज में टेक प्लेस, केमिकल चेंजेस में कलर चेंज भी होता है। गैस में भी फॉर्म, यहाँ पे गैस भी फॉर्म हो सकता है। Let us look at some example. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. हमने देखा था last time. Yes, burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is chemical change. कोई भी चीज आप जलाओगे तो वो chemical change कहलाएगा. Burning is always accompanied by production of heat. क्योंकि burning के साथ हमेशा heat accompany रहती है. एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। यस, अब जब दिवाली में फायर क्रैकर लगाते हो, फायर वर्क्स एक्सप्लोड करते हो, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with firework. तो इसीलिए हमें दिवाली में ये जो सारे फायर क्रैकर्स है उनमें उनको कम यूज करो, ये क्यों बताया जाता है? सो दैट ये जो फायर क्रैकर्स है उनके एक्सप्लोजन में हीट, लाइट एंड साउंड और उसके साथ साथ अनप्लीजेंट गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, सो एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ एयर. ओके, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल. Shall we call this change a chemical change? जब फूड स्पॉइल होता है तो एक फाउल स्मेल आता है, तो क्या आप इसे भी केमिकल चेंज बोल सकते हो? बोलिए. Yes, it is. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. देखा होगा ना आपने, हर बार होता है. अगर हम एप्पल को कट करके लेते हैं खाने के लिए और थोड़ी देर भूल जाते हैं तो वो ब्राउनिश होने लगता है, राइट? हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? Yes, many time you must have, right? If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity, slice of potato or brinjal. Change of color in these cases is due to the formation of new substance. Are not these changes chemical changes? Yes, here are also the chemical changes. Because अगर हम एप्पल, पोटैटो या फिर ब्रिंजल इनमें से किसी को भी स्लाइस करके थोड़ी देर रख देंगे, सो दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एंड वहां पे केमिकल चेंज होता है एंड इसी वजह से हमें उनका कलर चेंज हुआ दिखाई देता है. ओके, आपको ओजोन लेयर के बारे में पता है? व्हाट इज ओजोन लेयर? You must have learned in the previous standards, right? Yes. Do you know about ozone? Yes. Why it is called as the protective shell? Deepika, can you answer? क्यों protective shell कहा जाता है ओजोन लेयर को? Yes. Mhm. Yes, because it absorbs all the harmful rays that are coming from sun towards us, and इसी वजह से and that harmful rays, that UV rays are cause of cancer, skin cancer, and वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारे पास आने नहीं देता है ये ओजोन लेयर. ओके, now rusting of iron. Let us get back to rusting. This is one change that affect iron particle and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. तो आयन जब रस्ट होता है तो वो
आयन को पूरी तरह लाइक अनयूजेबल कर देता है, बिकॉज ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज, इनके मेकिंग में आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो रस्टिंग की वजह से बहुत सारा लॉस कर देता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ऑक्सीजन। वाई रस्टिंग इज हैपनिंग? बिकॉज ऑक्सीजन से ये आयन रिएक्ट करता है। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखिए, आयन Fe फेरस प्लस ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, प्लस वाटर, हम किसी भी जगह रख देते हैं उस आयन को जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, अ, तो वो रस्ट फॉर्म करता है आयन ऑक्साइड के फॉर्मेट में, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। इट इज अ केमिकल आयन ऑक्साइड। ओके, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। तो पानी की एक भाप भी बहुत काफी होती है किसी भी आयन को रस्ट करने के लिए। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. जब ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, यस, जब हवा में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तब रस्टिंग गेट्स फास्टर, आयन गेट रस्ट वेरी फास्ट। प्रिवेंट आयन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो ये आयन आर्टिकल ऑक्सीजन, पानी या फिर दोनों के कांटेक्ट में आने से इन्हें बचाइए। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सिंपल वे है कि हम ग्रीस उसमें अप्लाई कर सकते हैं जब ये ह्यूमिडिटी का मौसम आ जाए। In fact, this coat should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. दूसरा एक वे है जिससे हम रस्टिंग रोक सकते हैं, वो है क्रोमियम या फिर जिंक की एक लेयर आयरन पे लगा देना। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंक आयन पे डिपॉजिट किया जाता है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम इज टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे पानी लाने वाले, घर में पानी लाने वाले जो भी पाइप्स है, वो आयरन पाइप्स को गैल्वेनाइज किया जाता है सो दैट वो रस्ट ना हो। You know that ships are made of iron and a part of them remain underwater. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? सी, शिप्स हमेशा पानी में रहती है, बहुत सारा पार्ट तो उनका पानी के अंदर रहता है, तो वहां पे आयरन यूज किया जाता है, और वैसे भी पानी की लहरें ऊपर से भी आती रहती है, तो शिप का बहुत ज्यादा लॉस होता है, बिकॉज वो सलाइन वाटर में रहती है। समुंदर का पानी इज हाईली सैलिनेटेड, तो उसमें वो रहती है, तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं ये पानी में प्रेजेंट रहने वाले, वो ज्यादा हार्म करते हैं किसी भी शिप को, और वो आयरन हर बार चेंज करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा लॉस पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है। ओके, नाउ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater. Right? We have learned this. The salt obtained in this manner is not pure, and the shape of the crystal cannot be seen clearly. However, large crystal of pure substances can be formed from their solution. The process is called crystallization. जब हमने evaporation sea water का evaporation करके जो salt form किया, वो प्योर नहीं था, एंड क्रिस्टल के शेप भी क्लियरली नहीं दिख पा रहे थे। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से ये भी पॉसिबल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है। एक्टिविटी 6.9 है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर
Add a few drop of dilute sulfuric acid. एक कप फुल पानी लेना है बीकर में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, पानी को गर्म करना है। जब वो बॉइल होने लगेगा उसमें कॉपर सल्फेट की पाउडर स्लोली स्लोली ऐड करते रहना है एंड उसको स्टर भी करना है सोल्यूशन को। कॉपर सल्फेट के पाउडर ऐड करना कंटिन्यू रखना है जब तक पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। अब जब तक पाउडर डिसॉल्व होती रहती है डालना है। फिल्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर करके लेना है, छान के लेना है, उसको ठंडा होने देना है। कूलिंग के वक्त उसको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी बीकर को। अभी कुछ वक्त बाद अब आपको सॉल्यूशन को देखना है। आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स दिखने लगेंगे। अगर नहीं दिख रहे तो थोड़ी देर रुक के फिर से देखना है। एंड दिस इज द फिजिकल चेंज। ओके, यस, अंडरस्टूड। रस्टिंग, केमिकल चेंज। यस, क्रिस्टलाइजेशन, फिजिकल चेंज। रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। दिस वाज ऑल वी हैव लर्न। सो क्या सीखा हमने? चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप, फिजिकल एंड केमिकल। Physical changes the physical property of substance and no new substance is formed in this change and they are reversible. Chemical changes, new substance form and sometimes the substance can be obtained in pure state from their solution by crystallization. Okay, have you understood? You can go for the exercise. Yes, Deepika, you have the same book for your syllabus. Deepika? Okay, so in the next lecture, you should be done with writing, fill in the blanks, and all other question and answer I'll be asking orally. Okay, so everyone, is there any doubt in anything? Fifth, sixth, seventh, anyone? Okay, so if no doubts are there, you can leave. Bye bye. Good night.